Krishna Padam Lita Sita He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopina Ranga Radhakanda Namastute Tattakanyan Gaurangi Radhavinda Vishwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatu Vayatam Vasindhu Vayacha Patidana Pavane Vayo Vayo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So thank you everyone for coming. This is auspicious day of Krishna's appearance. Those two ladies at the back, Mataji, you come in front. I can't see you. I must see everybody. So, today is a very auspicious day. So, we want to talk about Krishna, who Krishna is. Everybody, most of you know who Krishna is. But we have to hear repeatedly. Just like we eat food repeatedly. Once we eat again next day. Similarly, the Krishna Katha, we have to hear every day. By hearing, our heart is pleased. We can see things as they are. And we can understand Krishna better. So, there are so many evidence in the scriptures which proves that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And who is the right person to give this evidence? Mahajans? Just like we go anywhere, you do some program, then the person there will ask about you, who you are, where you're coming from, and so forth. So the right person is the person himself. So Krishna is himself. He's going to tell us who he is. Usually we don't tell us about our fame or our glories. But Krishna is the Swarat, so he can say that. Otherwise we don't glorify our own selves. But Krishna can glorify his own self, who he is. Just to help the conditioned souls to know about him. So Krishna says in Bhagavad Gita, Jan Karachyami Divyam, Evo Vitakota Atyakva Deha Janma Naiti Mam. So to enable us to understand him, firstly he tells himself in Bhagavad Gita. So some of the verses where he tells about himself is Bhagavad Gita verse 10:8, where Krishna says, I am the everything comes from me, the spiritual and material world, and everything emanates from me. The wise who know this, worship me with all their hearts. So here Krishna declares who he is, and that everything comes from him. He also says in Bhagavad Gita 7:7, what is the verse? Mata pratam nāme kaśchit asti dhanya. There is nothing superior to me. We can't say that there is nothing superior to me. I'm the best lecturer. So many lecturers better. But Krishna can say that nothing is superior to me. Also, Krishna says that he is the Purushottama. Purushottama means he is सबसे उत्तम पुरुष है कृष्ण. Krishna is Purushottama. All the Purushas, he is the most Uttam Purush. He says, anyone who knows this without doubt, he does not have to know anything else. And he will worship me with love and devotion. Krishna says, Yo ma asam muro janati purushottama sa sarva vid bhajanti mam sarva bhavena bharata. Sarva vid bhajanti mam. You will worship me. When he knows he is the Supreme, he will worship. So this is what Krishna is trying to tell about his supremacy.
In so many places in Bhagavad Gita. Huh? In 8:19 also says, this is a famous word I always quote, by this time you should be knowing this. What is 8:19? 8:9. Huh? 8:9 is Krishna is the most knowledgeable. Kavim Puranam Anusasitaram Anor Aniyamsam Anusmireda Sarvatra Dhataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasam Parasa. He is Kavi. Kavi means very intelligent. Krishna is very intelligent. Purana, he is the oldest. Kavim Puranam Anusasitaram. Anusasan means he is the controller. Anusasan karta hai. Anor, he can be smaller than the smallest. And bigger than the biggest. When you say he can be bigger than the biggest, can you remember in Lila where he becomes very big? Universal form. Universal form, yeah, there's one. There's another one. When he came in the form of Dwam Brahmana, he asked for 3 steps of land and Bali Maharaj told he is a small boy. His legs are not very long, so give him 3 steps. But then he became so big, then in 2 steps he measured the whole creation. So he can be bigger than the biggest. Sarvatra Dhataram. He is a maintainer of everybody. He maintains everybody. Yesterday, we were talking with Vishwanath, that some devotees really know this thing, that he is a maintainer. So they don't work very hard. They depend on Krishna. So we don't know this because that's why we have to work hard. Devotees know he is a maintainer. They know Krishna will maintain some order. But Achintya Rupam, he can come in any form. Achintya means we cannot imagine those forms. Just like one form he came as Vara. One came form as Narasimhadev. Hiranyakashipu wanted the moon, that he doesn't come day, he doesn't come night, he doesn't he will not be killed outside the house, inside the house, not by animal, not by a man. So Krishna covered all this and he became a half man, half lion. He can become anything, Achintya Rupa. Matsya, so many forms. So he can come in any form. Aditya Varnam, he is luminous like the sun. Tamasa, he takes away from darkness. These are his qualities. So Krishna lives this all in this Bhagavatam. Also says Krishna is sitting above his heart. What verse is that? One thing is Sarvasya Chaham Hirdi Sannivishto Mata Samirti Jnanam Apnati Vedesa Sarva Mahame Vedyo Vedanta Krid Vedi Devachaham. So I am sitting in everyone's heart. From me come remembrance, intelligence and forgetfulness. From the Vedas I am to be known. Because I am the compiler and knower of Vedas. This is from the Vedas I am to be known. So people read Vedas but they don't know about Krishna. That's why when he came to preach, as Sankacharya, the last thing he said, Bhaj Govinda, Bhaj Govinda, Bhaj Govinda Mood Mate. पागल लोग गोविंदा के भजो, गोविंदा के भजो, क्योंकि Sankacharya can preach that Lord is no form. Krishna, whatever we desire, Krishna fulfills it.
If you want to design that Krishna in no form, he will send somebody to please that Krishna in no form. So Shankaracharya came and please that Krishna in no form. So some people they follow Krishna in no form. But in Bhagavad Gita, when Arjuna asked Krishna, which worship is better, form or formless? Krishna replies, worship of form is very good. Formless is very troublesome. Kaleso yadisvarkesam, avyakta asakta chetsam, avyakta is gati dukham. That if you worship the unmanifest, avyakta, which is not manifested, is very troublesome, very hard to know Krishna. So Krishna is telling about all this in Bhagavad Gita. And Krishna also says in Bhagavad Gita, that anyone who knows me as the Supreme Personality of Godhead, the unborn and Supreme Personality, unborn and beginningless, he will overcome all the sins. In Bhagavad Gita 10:3. Anyone who knows Krishna as Supreme Personality, unborn and beginningless, Adi Purusha, he will overcome all sins. So Krishna is unborn, though we are celebrating his birth, but Krishna just appears. Krishna prakat hote hai. He is not born. और कृष्ण भगवान भाव गीता में जो 10वां चैप्टर में अपना अपराध बताते हैं, so many opulence he is saying about himself. Krishna कहते हैं, the Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty Arjuna, because you are my dear friend, for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. इससे पहले जितना भगवान बताए हैं, he is now giving a better knowledge. क्या बोलते हैं? Neither the house of demigods nor the great sages nor my origin or opulences, for in every respect I am the soul of the demigods and sages. भगवत की देवी देवता मुझे नहीं जान पाते, मैं ही उनका सोल हूँ. बट भक्त लोग जान जाते हैं. भक्त लोग कैसे जान पाते भगवान? कैसे भक्त लोग जान पाते हैं? और डिसिप्लिन क्या सिखाता है कि भक्ति करो. कृष्ण कहते भक्तियां माम अभिजानन्ति. जब भक्ति करेंगे थ्रू डिसिप्लिन, अपने मन से नहीं, एकांत में नहीं, थ्रू डिसिप्लिन. इसलिए हमारे वर्तन कंपल्सरी है जो डिसिप्लिन रखे. हम लोग अभी बाहर गए प्रोग्राम करे तो लोग सिर्फ कृष्णा जगन्नाथ को रख दिए, डिसिप्लिन नहीं रखे. उन्होंने कहा है get the distinction through there. Otherwise we won't know Jagannath or the Subhadra. If you know them through distinction. That's why in our prayers we pray. And also all the time glorify Guru Parampara ki jai. Guru Parampara is very important. तो but हम लोग इसलिए भक्त लोग सीख जाते हैं कि वो गुरु परंपरा से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं. और देवी देवता लोग नहीं जान पाते, बहुत कोशिश करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल्स भी कहाँ जो देवता लोग नहीं समझ पाए. ब्रह्मा जो पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था क्रिएशन में, वो भगवान को नहीं समझ पाया. उसको ज्ञान भगवान से मिला था, मगर वो बाद में भगवान की जो योग माया उसको भुलवा दिया. जिस समय ब्रह्मा गौ चराने गया और गौ बाग साथ में गया जंगल में, तो ब्रह्मा, क्योंकि भगवान जो है वो किसी का झूठा नहीं खाते, ये हम लोग जानना चाहिए. उनको भोग अर्पण किया तो वो खाते, मगर अपने भक्त के और साथ में पिकनिक करने गए थे तो ब्रह्मा देखा वो भक्तों का ग्वालों का झूठा खा रहे,
तो उसने वो कहा ये भगवान नहीं हो सकता है। तो उसने उसको टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? उसका ग्वाल बाल चोरी कर लिया, गाया और ग्वाल बालों को चोरी कर लिया, अगर एक गुफा में बंद कर दिया एक दिन के लिए, है गुफा में बंद किया। तो कृष्णा सोचा कैसे मैं घर जाऊँ लौटूँ, सब लोग तो है नहीं आता। तो कृष्णा अपने आप को सब गौओं का रूप लिया और ग्वाल बालों का रूप लिया। He expanded himself. कृष्णा जो है इज द बिगेस्ट मिस्टिशियन, सबसे बड़ा मैजिशियन है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप को बनाया उसी तरह बनाया जैसे है वो थे, है वैसे गौवा लोग को बनाया। वैसे भी कृष्णा बनाता है। हम लोग सब कृष्णा से आए हैं, हम लोग किसी का चेहरा एक रकम नहीं है किसी का चेहरा एक रकम। कभी कोई प्रिंस का हो जाता है, बट एक चेहरा कोई का नहीं रहता है। दिस कृष्णा, so many people all different। हम लोग कुछ बनाते हाथ घूम के एक क्या बना जाता। कृष्ण तो अलग अलग बनाता है लोगों को, सब अलग, बाल भी अलग कर देता है, किसी को अलग बाल निकाल देता है। तो कृष्णा के गुरुदेव तो जब देखा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा आया देखे कृष्ण तो वही गौड़ बालों को घर पर ले जा रहा है और गायों को ले जा रहा है। तो कृष्णा इतना स्मार्ट है, जब घर ले गया सब गौड़ बालों को, तो सबको बताया ब्रज में कि बहुत अच्छा सीजन है शादी का, है सब लड़की लोग शादी कर गौड़ बालों के संग। तो वो लोग सब शादी कर दिया। और कौन सा सब गौड़ बाल सब कृष्णा थे, तो कृष्णा ही सबके संग शादी कर दिया। इसीलिए हम कृष्णा को बोल नहीं सकते कि वो बिना शादी करे लड़की लोग को घुमाता है। वो सब शादी कर लिया था ये लीला के द्वारा। तो ब्रह्मा आके देखते हैं तो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, जाकर फिर अपने गुफा में देखते हैं, देखते वही लोगों को बन जाएगी। तब ब्रह्मा को समझ में आया कि ये भगवान है, और प्रार्थना किया। भगवान ने ब्रह्मा ने प्रार्थना किया, गलती क्षमा मांगा। और क्षमा में जैसे छोटा बच्चा क्षमा मांगता है पिता से, वैसे क्षमा मांगा। तो ब्रह्मा ने कहा यू हैव टू फॉरगिव मी। ऐसे हम लोग क्षमा मांगते हैं कि नहीं? हम लोग कोई गलती करे बोले यू हैव टू फॉरगिव मी, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो नम से बोलना पड़ता है ना। ब्रह्मा कहता है यू हैव टू फॉरगिव मी भगवान से। और कहा है बोलता फॉरगिव मी, बोले आप तो सबको फॉरगिव करते हैं। जैसे बोले एक माँ गर्भवती रहती है, जब उसका लड़का लात मारता है पेट में, है तो माँ क्या बोलती है? एक्सपीरियंस लोग सबके बताए, माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है बच्चा जिंदा है, अभी राइट साइड है, अभी लेफ्ट साइड है, कौन सा जस्ती है तो लड़की है कि लड़का है। तो माँ खुशी होती है जब बच्चा लात मारता है। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं तो आपको थोड़ा लात मार दिया, आपको गुस्साते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको। ये ब्रह्मा भगवान से बोला। तो इस लीला से ब्रह्मा को जान ले कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। वैसे तो कृष्ण जानते थे, बड़े योग माया से भगवान उनको गायन हरण कर दिया। नहीं तो ब्रह्मा तो हमारे परंपरा के पहला व्यसन है, वहाँ संप्रदाय ब्रह्मा शुरू होता है हमारे लीला दिखाने के लिए। भगवान के सुप्रीमेसी उसका जो है क्या कर सकता है भगवान, लीला कर सकता है क्या क्या। क्योंकि ये लीला करने से कोई लोग अट्रैक्ट हो जाए। भगवान क्यों लीला करते हैं? भगवान लीला करते हैं कि ताकि हम जो बद्ध जीव है वो लीला से अट्रैक्ट हो जाए। कृष्णा का नाम ही है कृष्णा। कृष्णा मीन्स वन हू अट्रैक्ट्स। भगवान चाहता है कि सब जीव लोग अट्रैक्ट करके और अपने धाम ले जाए।
इसीलिए जो भगवान का लीला है, ये सुनने से, बोलने से, स्मरण करने से प्यूरिफाई होता है, क्लींस हो जाएंगे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आश्चर्य सब खत्म हो जाए। इसलिए भगवान हरदम कहते हैं मन मना भवबंधन तो मज्जानी माम कि हर वक्त हमारे मन सोचो तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग ब्लैंक। अगर भगवान लीला है तो हम उसको सोच सकते हैं, ठीक है कि नहीं? खतरा नहीं, भगवान का क्या सोचेंगे हम लोग? जैसे ड्यूटी आता है और कुछ सेवा नहीं करता है तो जब सेवा के बाद तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? है तो हम लोग भी देखते हैं भगवान अलग लीला करता है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में दूसरे से बता सकते हैं, सुनेंगे, बताएंगे, सोचेंगे तो हम प्यूरिफाई हो। ऐसा है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भगवान लीला करता है। तो और भगवान अलग अलग लीला करता है ना। तो ये 10वां अध्याय में बहुत से भगवान के उपलब्ध है जो मैं बताता पहले, he who knows me as unborn, as beginningless, as the supreme Lord of all worlds, he only unrooted among men is freed from all sins. ये 3 बात से जानना है। अनबॉर्न है भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी है और परम पुरुष बिगिनिंगलेस है। और कोई बिगिनिंगलेस नहीं है, सबका बिगिनिंग होता है। राम का भी बिगिनिंग होता है? और कृष्णा हर वक्त नहीं आते हैं। कृष्णा ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते। ब्रह्मा का एक दिन कितना है? 1000 rounds of all the yugas, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1000 बार जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा एक दिन में एक बार आता है। सो स्पेशल, वी आर सो लकी। अभी नजदीक में कृष्ण आए थे, हम वहाँ से जानते कृष्ण द्वापर के में आते थे। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण एक दिन में एक बार आते हैं। आफ्टर कृष्णा चैतन्य महाप्रभु comes, तो बहुत स्पेशल है, तो प्रकट है भगवान। तो ऐसे ऐसे बहुत से आपने बताया है कृष्णा के बारे में। भगवत गीता में वही बताते हैं कि कृष्णा, और बताते हैं कि कृष्णा ही भक्ता ही एंजॉया यज्ञ का, तपस्या का, सब चीज का ही एंजॉया। और सर्वलोक में सब लोगों का मालिक है। भगवान ही सब चीज का मालिक है। हम लोग जब मालिक बनना चाहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान? रोटी को मटेरियल बेचा। हम लोग मालिक बनना चाहते हैं अपने अपने छोटा सा प्रॉपर्टी का, अपना वाइफ और हस्बैंड का। आजकल तो इसके हस्बैंड का मालिक बनना चाहते हैं। गली में उल्टा हो। और कहते हैं लोडिंग अमाउंट। When I joined Hare Krishna, I didn't know. I was reading Bhagavatam. When I come to this verse, loading of mentality, मैं इसको समझता नहीं था। ये समझ में आया क्योंकि मैं थोड़ा लौट था उस समय। तो मुझे समझ में, क्योंकि मैं पढ़ता जाऊँ बहुत रोज बाद तो मुझे समझ में आया भगवान क्या हमको समझाने की कोशिश करता है। तो it was very lucky that we had a coup that time. So that coup helped me a lot. हमारा loading of mentality वो हटा दिया। So I always thank Guru का। अगर वो coup ना होता तो मैं डिवोटी नहीं बनता आज। I became devotee because of the coup. So he helped me. मुझे अनशिप का मेंटलिटी हटा दिया। तो मैं सोचता था मैं तो सरकार में बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, कानून को उचित कानून में होगा ऐसा। तो भगवान ऐसे अपने बारे में बहुत बताता है और अर्जुन भी बताता भगवान के
कृष्ण क्या कहते भागवत गीता में? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम गुरु पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम। Arjuna is confirming the same points told by Krishna. और कहता है कि और ऋषि लोग भी यही मानते हैं, तो सब लोग यही मानते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम। और महाजन लोग भी बताते हैं, देयर आर सो मेनी महाजन। और खासकर जो सुखदेव गोस्वामी एक महाजन है जो भागवतम में हमको बताते हैं कि कैसे भगवान सुप्रीम है। जब सुखदेव गोस्वामी भगवान के अलग अलग अवतारों के बात करते हैं, पहला अवतार कौन है भगवान का? Who is the first incarnation of God? Char Kumar is the first incarnation. Then comes Matsya. ऐसे ऐसे सब incarnation है भगवान। Don't worry, if you don't know, it's not a big problem. I even didn't know before coming to this lecture. तो मैं बड़ा भागा था तो मुझे पता चला। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भगवान के अवतार है। वामन देव, दत्तात्रेय, मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह और राम अवतार, ऐसे सब। जब सुखदेव गोस्वामी सब अवतार का वर्णन कर दिया, जब कृष्णा के बारे आया तो क्या कहता है? कौन भेज दे बोलो? कृष्ण भगवान कि all these incarnations I mentioned, charms are part and they are expansions and expansions of Krishna. But Krishna is Swayam Bhagavan. So this is the main authority. I remember when we joined Hare Krishna, Anjana Prabhu used to tell us how we prove Krishna's supremacy. So yes, so Anjana Prabhu ने हमको सिखाया है। Anjana Prabhu सिखाया कि ये सुखदेव गोस्वामी बोलता है कि इते चाम सकला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान इंद्रियाणि व्याकुललोकम परागतिं। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोलता है कि कृष्णा सुप्रीम है। और सुखदेव गोस्वामी शुरू में भी बोलता है, भागवतम के फेस बेस में बोलता है कि कृष्णा सुप्रीमेसी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी फिर आगे बोलता है वेस 12 स्कंद में, जब वो भागवतम का सुप्रीमेसी बता रहा था, तो कभी कभी हम किसी के बारे में पता है तो विल कंपेयर विद समबडी एल्स, ही इज ग्रेट एज हिम। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, निम्न गान में था गंगा, देवा नाम अच्युतो था, वैष्णव नाम था शंभु, वह नाम इदम था। कि नदी में जो है गंगा सबसे महान है। जैसे नदी में गंगा महान है, वैसे भगवान अच्युत कृष्णा सबसे महान है। और वैष्णव में शंभु शिवजी सबसे महान। और पुराण इदम तथा तो ये पुराण लिखा है। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, स्पेशली फिजी में अलग केस में भी, कि लोग सोचते हैं शिवजी सबसे महान है। तो क्या बताया, शिवजी सबसे महान भक्त है, भगवान नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, यस्तु नारायण देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवता पसंदी भावत पूर्व, कि जो भगवान को, जो ब्रह्मा और शिव को भगवान को बराबर माने, ये तो हमारा सेकंड ऑफेंस भी है ना। अगर हम लोग मानते हैं तो चैंटिंग काम नहीं करेगा। तो कहते जो इसके बराबर मानता हो पासंदी है, पासंदी माने धर्म नहीं जानता है। और कलयुग में ऐसा ही लोग रहेंगे। कलयुग में मोस्ट पीपल विल थिंक लॉर्ड शिवा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। बड़े बड़े प्रचार लोग होते हैं, प्रचार करते हैं तो लास्ट में बोलेंगे हर हर महादेव। मैंने देखा बड़े बड़े प्रचारक होते हैं जिसके पीछे मिलियंस ऑफ पीपल भागते हैं, वो सब हर हर है। दिस इज
इसलिए हमको सबको सुनना नहीं चाहिए। भले इंडिया से आए कहीं से आए, हमको नहीं सुनना चाहिए। हमको अपनी परंपरा के लोग सुनना चाहिए। अदरवाइज यू बी कंफ्यूज्ड, है, यू बी कंफ्यूज्ड। So हमारे गुरु था वो, he was very strict on who was sitting on the Vyasasana. He might not be so lenient, at least he comes in the parampara. Even if somebody was in the parampara, he is the parampara, he is not allowed to sit here. एक व्यक्ति आया था तो फिर में फेस हम लोग को प्रीचिंग किया गया। एक दिन वो आकर बैठा, उसको राव कह दिया। मैंने तो को बताया ये राइट नहीं है, बट इफ यू वांट टू कन्विंस यू कैन कन्विंस। तो लोग समझ गए मेरा बात, तो उसको नेक्स्ट डे से नहीं बैठाया। That's why in respond, nobody allowed to sit. अभी एक प्रचार इंडिया से क्या थिएटर, तो my sister is a devotee there, she went to listen. तो मैंने उससे फेस पूछा तो प्रोग्राम कहाँ हो रहा था, कि हमारे टेम्पल में हो रहा था। उन्होंने नहीं, बाहर अलग टेम्पल में हो रहा था। ठीक है, पर आपको सुनना नहीं चाहिए, तो टेम्पल में डाला हो ऐसा है। परंपरा के व्यक्ति बताएगा तो समझ में आएगा। एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस, परंपरा कैसे इफेक्टिव रहता है। यू लिसन फ्रॉम परंपरा इज वेरी इफेक्टिव। हम लोग खुद बहुत भागवत अपने गांव में सुनते थे। सुबह आए तो हम लोग भागवत कथा करना चाहते घर पर। I had some problems, so I took a vow that I would do भागवत कथा, है। तो मैंने पूछा लोगों से, तो $1,000 मांगते हैं भागवत कथा करने के लिए। तो मैं हमारे काम में व्यक्ति था और हरे कृष्णा नहीं था, पर वो जानता था हरे कृष्णा को। मैंने कहा तो पंडित जानते जो भागवत कथा मुझे करते, मुझे कहा हरे कृष्णा वाले तो फ्री करते हैं, उनको बुलाइए हरे कृष्णा वाले। मैंने कहा आप जानते? बोले मैं जानता हूँ। वो बोला है नंद किशोर प्रभु को राम चंद्रा को। मैंने देखा इनको फर्स्ट टाइम, तो वो लोग बोले नहीं यहाँ नहीं बात हो। मैं चचा वहाँ हो तो गम सप्लाई, तो मैं घर पर डाला। घर पर आए तो मैंने घर देखा, छोटा सा घंटा था। मैंने कहा यही कर दे, मेरा वाह पता मुझे। तो मैंने यहाँ था वो लोग को प्रीचिंग आई हुई है ना, जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल में जाते कहा गए थे, तो मैंने हम लोग शेड बनाते थे बाहर। मैंने कहा भाई तो नहीं सकता मैं, एक व्यक्ति था वो विनोद पड़े के टिम्बाया में काम करता था, वो बोला मैं बनवा दूँगा। मैंने कहा अच्छा बनाओ। तो वो लोग आकर भागवत करें मेरे घर में 5 दिन के लिए आए। मेडन लेके मैं फेस्टा मेडन देखा जाते जब करते हैं। मेरे फ्रेंड से गाँव के लोग बोलते हैं लोग सी आपका घर बांध रहे हैं ऐसे मुझे मेरा तो वही था कि मेरा वाह खत्म हो जाए, बस घर बांधे या खोले। तो उन्होंने 5 दिन सुना, क्योंकि वो परंपरा से आते थे। वो कथा बताया 5 दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रिकॉर्ड कर रखा था, जो मेरे घर पर घूमने आए मैं उनको फोटो सुनाऊँ। वो लोग इंटरेस्टेड थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिपीटेड सुनते गया, रोज कोई आया मुझे सुनाई उसके कैसे बोली थी। तो ये असर है परंपरा का। 5 days है, अपना फ्री वगैरह सब खाली कर दिया 5 दिन। पर इम्पोर्टेंट थिंग था वो लोग 6वां दिन भी आए, 6th day, जिस दिन मैं अपना पुराना कार्यक्रम शुरू करने वाला है। It was very important. Fallback is very important in preaching. या फिर जब उनको मिलो तो लोग 6वां दिन आए। नंदपुर बाबा ने कहा तो क्या आपका विचार है? आप फिर वही काम करना चाहते थे तो गज स्नान हो जाएगा, एल्फन बाथ है कि अब नहाए तो फिर बालू छोड़े थे ऊपर। वो हमको असर किया। और उधर रामचंद्र विश्वनाथ को बैठाकर वो कृष्णा बनाकर उसको बताते थे कैसे 4 times चरण पे, 4 times नाभि पे, 3 times फेस और 7 times राउंड। उसको सिखा दिया वर्षिप करने की। और ये मुझे मेरा पीछे लगा है। तो हम लोग भागवतम खरीद ले, रोज भागवतम पढ़ता था। इससे बहुत ईजी होता है। और गोइंग बैक एंड seeing the people after you preach. When Ramchandra used to come to us and what he will say, oh, I was passing by, I thought to see you. But he was coming to see us. He
He was not passing by. Or he will say like, we don't go and say, I have come to preach you. तो कोई गुस्सा दे रहे मैं क्या preach करेगा, मैं तो जानता हूँ सब। तो वो ऐसे नहीं बोलता, बोलता I have come to see you. फिर कुछ बात कर देगा, हैं? तो ऐसे preaching is the preaching. परंपरा से लोग असर कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु खुद जो भगवान के अवतार है, वो बताते हैं कि अकेले ईश्वर कृष्णा और सब विद्या। कृष्णा अकेले ईश्वर है और सब विद्या मैंने सेवंट है। जैसे हम देखते हैं लक्ष्मण भी भगवान है ना, ठीक है कि नहीं? बट जब राम के साथ में आते हैं तो ही द सेवंट ऑफ राम, ही सेविंग राम। बलराम भी भगवान है, कृष्ण के साथ आते तो सेव करते हैं, सब टाइम सेव करते हैं, ऐसा है। तो अकेले ईश्वर कृष्ण। और तो डिवोटीज लोग बहुत पास्टाइम मिलाई करते हैं भगवान का। भगवान को जानने के लिए हमको महाजनों को फॉलो करना होता है, क्योंकि उससे पूछा गया कि धर्म कैसे सीखा जाए, उसने बताया महाजनों ने बता सकता कि यह तो फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। तो भागवतम में सब महाजन लोग बताते थे कि क्या क्या करना चाहिए। और कृष्णा ने बहुत अलग अलग तरह के पास्टाइम किया है। वो बाल लीला किया है, बड़ा होते थे गौचारा लीला और लीला किया है, बड़ा हो गया फिर लीला किया है, क्योंकि वो अलग वैरायटी और लीला करते। क्यों वैरायटी का लीला करते हैं? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग लीला लायक करते हैं। कोई बच्चा खिलाना चाहता है तो भगवान से बच्चा दे देते हैं। Especially you see some people worship Lord Gopal, they like that form of Krishna, है? ऐसा है। तो भगवान बहुत छोटे में भी लीला कर देते हैं। और भगवान का लीला जो है वो हमको बहुत आकर्षित करता है। तो इसीलिए हम भगवान अलग अलग लीला करता है। जैसे छोटे में हम देखते हैं भगवान की लीला का पुतना को मार देते हैं, तो सिर्फ इतना छोटा भगवान था, है? और तीन पत्ता को मारते हैं छोटे पे। भगवान का जो ताकत है वो उसका एज और उसका साइज पे नहीं है, पूर्ण ताकत है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ही इज अ फुल पोटेंशियल, ऐसा है। तो हम लोग देखे अलग अलग लीला, तीन पत्ता को मारे, पुतना को मारे, और पुतना को मारने के बाद भी उसको अपनी माँ की जगह दिया, क्योंकि सब जीवात्मा भगवान के अंश है, सब भगवान के बच्चे हैं। तो कोई बदमाश बच्चा भी है उसको भी जगह देता है भगवान, है? अच्छा बच्चा जगह देता है। तो बच्चे तो हमारे, बच्चा अंधा भी देखो हम कहते हैं कमल लोचन, है? ऐसा है कि बच्चे को सबको ला करते हैं। तो इसीलिए भगवान छोटे उम्र में भी लीला किए हैं। हम देखे भगवान ने जो दामोदर लीला की है, भगवान दामोदर लीला किए खास करके हमको सिखाने के लिए कि भगवान को कैसे जान पाएंगे, कैसे हम मान पाएंगे भगवान को, है? हाँ, परिश्रम, प्रयास और भगवान की कृपा। हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे, अगर भगवान की कृपा ना करे तो हम नहीं भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाएंगे। और भगवान की कृपा कैसे मिलता है? When we see everybody saying भक्तों का सेवा करें, भगवान बहुत खुशी होता है। भगवान कहते हैं इवन ऑफरिंग जो मुझे मिलता है, I enjoy through the mouth of my devotee. I enjoy the offering through the mouth of my devotee. जब ये
लक्षण है, प्रीति लक्षण। गिव फूड, टेक फूड, गिव गिफ्ट, टेक गिफ्ट, रिवील कॉन्फिडेंस और दूसरे कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट करो। ये हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बहुत खुशी होगा। भगवान बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह भगवान अलग अलग लीला करते हैं। और खासकर ये लीला क्यों करते हैं, मैंने बताया था पहले कि ताकि हम इस लीला को सुन सके, बोल सके और गा सके। तो सुनने में कौन सबसे परफेक्ट है लीला भगवान को सुनने में? Who is the most perfect person? ये शास्त्र में एग्जाम्पल है कि भगवान लीला सुनने से ही हुआ सेलिब्रेटेड। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज सुना था कथा है सुखदेव गोस्वामी से, राइट सोर्स, and he could not feel any hunger, any thirst, any sleep. भगवान कथा हमको ऐसा कर देता है। Why? Because it brings us in a mode of pure goodness. Pure goodness में हमारा नींद खत्म हो जाएगा, हमारा जो भूख खत्म हो जाएगा, हमारा प्यास खत्म हो जाएगा। ऐसा है pure goodness। परीक्षित महाराज सुनता है। Another example is रुक्मणी सिर्फ भगवान कथा सुनी थी, भगवान को देखी नहीं थी कभी। सिनेमा सौ कृष्णा, उसके घर पर, पिता घर पर साधु लोग आते थे, वो कथा बताते थे भगवान का। कि जो पुराने लोग थे वो लोग कोई आए घर पे भगवान के बारे में बात करें, भगवान के बारे में बात करें। अभी हम लोग के पास कोई रील करते तो भगवान के बारे में बात नहीं करते, डिप्टी तो बात करते हैं, पूछते हैं भगवान के बारे में। कोई तो व्यक्ति लोग तो बस बिजनेस तो है। तो ये भक्त वो जो बोले लक्षण नहीं है। भक्त को कहते हैं भक्तिता मद्गता पुराना बोधयंता परस्परम कथायंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च नित्या। भक्त लोग भगवान की कथा सुन के फील हैप्पी, तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम लोग तो कभी कथा सुनते भी है, नहीं आता है, हम सोचते कम पद हुए तो प्रसाद क्या होगा उसमें तुष्यन्ति च रमन्ति च रहेगा। मगर एक स्टेज आएगा, सबने सुनते एक दिन आएगा कि हम लंबा कथा सुन सकते हैं। आज सुबह मैं, कल शाम को मैं विश्वास से पूछा कि कितना लंबा कथा रहेगा, तो बोलता है गुरु पूजा से दर्शन करो, तो वो शॉर्ट है, मतलब 6 घंटा लेक्चर बनाया है। मैंने कहा अच्छा दर्शन के बाद शुरू कर सकते। फिर इंडिया में तो 8 घंटा राधानाथ महाराज 8 घंटा अष्टमी को करता देता, 8 आवर्स तो बैठ के सुनते हैं। People are hungry for the katha, want to listen and listen. तो कुल बुद्धि का रुक्मिणी मायानी का है कि वो सुन के ही भगवान के बारे में और उससे आकर्षित हो गई। तो भगवान अलग अलग पास टाइम करते हैं। कोई पास टाइम बहुत मिस्टिक पास टाइम करते हैं, जैसे लोग चमत्कार लाइक करते हैं। भगवान अलग अलग ऐसे करते हैं, जैसे ब्रह्मा का पास टाइम के चमत्कार किया, he formed himself so many Krishna, so many cows। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद को चमत्कार नहीं करते हैं, तो चमत्कार करो। प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद ने देखते नहीं मैं इतना चमत्कार कर दिया है, गोरे लोग को मैं डिवोटी बना दिया। हमारा चमत्कार क्या है, एलिजी को डिवोटी बनाए, पिजन को। पिजन को नहीं बनाए तो एक अपने जो हिंदुस्तान से रिलेटेड है उसको डिवोटी बनाए, किसी को डिवोटी बनाए, क्योंकि हमारे सामने कोई अलग अलग देश नहीं है। Everybody is one. There is no distinction. Everybody is a spirit soul.
वो फिजियन बॉडी को अमेरिकन बॉडी चाहनी है अपनी भगवान, उसके पास जो है भावना है भक्त बनने का, जिसका पोटेंशियल इज जस्ट स्लीपिंग इन द स्लीपिंग स्टेज। हम लोगों को जागृत करना है। कैसे हम जागृत करेंगे? भगवान का नाम देंगे, भगवत प्रसाद देंगे। खास करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत में बताया गया कि भगवान स्टेब्लिश किए भगवान का नाम जप करना, ये बहुत बेनिफिशियल है। खासकर भागवतम में दिया गया है 1114। अब देख सकते 1114 में क्या बेनिफिट है। अपन्ना संस्कृतम घोरम यन्नाम विवसो विना तथा साध्यो विमुंचेता यद विभीति स्वयं भयं। Living beings who are entangled in the complicated messes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. ये भगवान का नाम है, बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है कि हम लोग नगर संकीर्तन करें। ये सिर्फ सुनने से पीपल बेनिफिट है, सुनने से जाने में इसमें बेनिफिट। और इससे जो फियर पर्सनिफाइड है वो डर जाती है। वासुदेव और कृष्णा, the absolute personal Godhead, is the supreme control of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, and others who were very powerful living entities were all killed by the presence of Godhead. And the Almighty Vasudeva has empowered his name with the powers of his personal self. तो भगवान ने अपना नाम को भी सैन्य शक्ति दे दिया कि जो असुर हमारे हृदय में बैठे हैं उनको सब मार दे है। Everything related to him and everything has its identity in him. It is stated here in that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is not different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Krishna even in the midst of the greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the horror of birth and death. ये नाम जो है भगवान का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक बार नारद जो हमारे परंपरा का खेल व्यक्ति है वो जाते ब्रह्मा के पास और पूछते कि कलयुग में सभी लोग इतना बिजी है वो कैसे मुक्त होंगे, अब वो चक्कर से कैसे निकलेंगे। बिकॉज नारद wants everybody to go back home, उसका ये काम है, इसलिए वो नारायण नारायण करके चलते रहता है। तो ब्रह्मा ने कहा जाकर बताओ सबको कि भगवान का नाम लो। तो नारद सोचा
अगर मैं बताऊं भगवान का नाम लो तो कलयुग में तो लोग जानते नहीं भगवान कौन है, कौन नाम लेंगे। इसीलिए उसको कहा कौन नाम, ब्रह्मा से बोला कौन नाम लेंगे। तब ब्रह्मा यहाँ बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा बताया है ये नाम बोलो तो बताता है इति 110 नाम, ये 16 अक्षर नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 16 नाम है। इति 110 नाम कली कल्प नाशनम, कलयुग का जो सब महिला नाश कर दे। कलयुग का क्या महिला है? कलयुग का क्या महिला है? रस कलयुग का महिला प्रभुपाद को 4 नियम बताते हैं। नो किलिंग, नो मीटिंग एक्ट्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स लाइफ। जो ये लास्ट वाला है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे है। और इंटॉक्सिकेशन तो गांजा पीते हैं और इसके कोई के पास वो नहीं है, व्हाट यू कॉल आंसर कैसे कंट्रोल करो। नो कोई नो टू कंट्रोल दिस। मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताते हैं कि लोगों को सिखाना चाहिए कैसे कंडोम यूज करो। वो स्टॉप नहीं कराते हैं, वो एक साधन देते हैं डॉक्टर लोग, सरकार लोग एक रास्ता देते हैं ब्रेथ कंट्रोल। हमारा संस्था क्या सिखाता है, हमारा जो शास्त्र क्या सिखाता है, नो सेक्स लाइफ unless you want a child. But how is it possible? It's only possible if you chant the Lord's name. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Then what else? Eat only prasad. Eat only prasad. That's why Guru all the time looks at prasad. So if you only do these 2 things, chant holy name, eat prasad. Of course, other things you can do sadhu san and read Bhagavatam. Then you can control your mind. Aisa an, aisa man. But 99% लोग नहीं जानते हैं कैसे कंट्रोल करो ये, सिर्फ हरे कृष्णा ही जानते हैं कैसे माइंड को कंट्रोल करे। तो ब्रह्मा है मंत्र दिया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये सभी को जप करना चाहिए। ब्रह्मा ये बताता है ये नाम जप करो। और चेतना महाप्रभु चेतना चेतन ने बताया कि ये नाम इज सो पावरफुल, दिस नेम इज सो पावरफुल। वो कहते हैं कोटिन यशो मिलियन। कोटिन माने कितना? मिलियन। यशो में जो राम किया था, यशो में घोड़ा छोड़ते कोई पकड़े तो कोई नहीं पकड़ पाए तो हेल्प करेंगे, ऐसे मिलियन यशो में हेल्प पड़े। कोई बोले एक कोटिन यशो में एक कृष्णा नाम समा, कोटिन यशो में कृष्णा के बराबर है, तो क्या होगा? यही कैसे पसंदी। अगर कोई इसे बोले है तो पसंदी है, धर्म नहीं जाने। और जब धर्म नहीं जाने तो कौन सी वही दंड तारे यमा, यमा मीन्स यमराज को दंड दे तो धर्म नहीं जाने। कोटिन गौदानम, मिलियंस ऑफ गाय, तो मिलियंस ऑफ गौ दान करो, मेरू पहाड़ के बराबर सोना दान करो। इसके जो बेनिफिट है, कोटिन यशो में कोटिन गौ दानम, मेरू पहाड़ के गौ दान करो, चैरिटी। तो उसके जो बेनिफिट है
is not equal to 1/10,000 of the benefit derived by chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. तो हमको क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, हैं? भागवत फ्रेंड ने बताया कि यही चलेगा संकीर्तन यज्ञ। जब मैं सुबह सुबह दर्शन करता हूँ, I always chant this verse from Chaitanya Charitamrita, from Bhagavatam. Krishna Varnam Krishna Krishnam Sango Bhagavata Yagna Sankirtan Pai Vajeti Sumedisa। भगवान आप आए हैं और संकीर्तन यज्ञ हमको सिखाने आए हैं। और जो इंटेलिजेंट रहेगा सुमेधसा वो फॉलो करेगा। भगवान इतना महाप्रभु का एक टीचिंग है, लोग थोड़ा एक गाय दान करते हैं, कभी हम देते हैं, कोई मरने वाला तो लोग एक गाय दान करते हैं। कभी गाय कभी कोई प्लास्टिक का लगा, वैसे जब प्लास्टिक के गाय है ऐसे करके लोग मैं देखता हूँ अमेरिका में प्लास्टिक गाय पोस्ट करा देते हैं। पागल, इसीलिए तो जो बागेश्वर गाय पागलों सब लोग पागल है, वो सही बात नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा ऐसा काम करेंगे लोग फॉलो करेंगे और खास के पैसा ले, प्लास्टिक गाय का पैसा नहीं लेगा। $1,000 लोग के पास $1,000 है नहीं, तो पंडित अप्रोच भी रखा हुआ अपना कार्ड रखो, इतना स्मार्ट है पंडित। फ्री में तो नहीं करते हैं, तो ऐसा करते किसी ना किसी तरह से पैसा बनाओ। तो कहते हैं दान भी बहुत इम्पोर्टेंट है शास्त्रों में। तो कैसा दान होना चाहिए बताएगा। इसको कहते ईश्वर कहते बहुत भाई दानी था ना ईश्वर महाराज, और सबको दान करा था, यज्ञ किया, सबको दान किया, ब्राह्मण लोग बड़ा बड़ा दान किया। तो लोग कहते थे ये बहुत बड़ा दान करता है, दानवीर है। तो एक बार एक व्यक्ति आया उसके घर पर, वो उस टाइम हवन का टाइम था ना, तो चंदन लकड़ी खोल रहा था हवन करने के लिए। तो बहुत वर्षा का समय था, पानी बरसता था। तो दूसरे के पास गया, आपने कर्मचारी बताया तो दे दो चंदन का लकड़ी। वो लोग खोजने गए, और सब लकड़ी भीजा है, कोई लकड़ी है नहीं यहाँ पे। तो बता दिया लकड़ी नहीं है, तो कृष्ण आकर बोला कैसे है? तब लोग कहो आपको दानवीर कहते हैं, सबसे बड़ा दानवीर तो कौन है? करना है ना, करना को दानवीर। उसके पास जाओ, वो जरूर आपको देगा। तो करना के पास गए लोग, ब्राह्मण गया, तो करना बताया आपने सब कर्मचारी है, इसको दे दो कुछ। वो लोग भी आए, बताया कुछ नहीं है, तब लकड़ी भी जाए कुछ है भी। उसने कहा मेरा रूम है चंदन से बना है, इसको उखाड़ के सब दो, इसलिए उसको दान भी देते हैं। अपना जो काम में आने वाला चीज भी दे दो, देता भी होता है। इसीलिए भगवान देखता है कि आप कितना बचाते, आपने वो ले देता है, आप कितना दिए दान दिए। That is charity in the mode of pure goodness. अपना जो काम में आता है उसको भी दान करना दिया था। इसलिए प्रभुपाद के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, सभी कुछ 40 रुपीज ले गया, इससे ही तो दान लेकर भगवान सेवा लगाया गया। ऐसा है। तो स्टेज आएगा, समय लगेगा हमको आस्ते आस्ते, जब हम मछुआ होंगे भक्ति में तो ये सब आएगा।
तो ऐसे भगवान अलग अलग लीला भगवान करते हैं। भगवान बहुत सी लीला किए और गोवर्धन लीला भी किए भगवान। और इंद्र का जो मान है, क्योंकि भगवान देखता है जब हम बहुत मान सम्मान मांगते हैं तो हमारा मान सम्मान भगवान को होता है। इंद्र सोचता था कि मैं ही पानी देता हूँ सबको और इसीलिए मेरा पूजा होना चाहिए। तो वृंदावन के लोग एवरी ईयर पूजा करते। नंद महाराज would get all the Brajvasis and worship Govardhan ji, worship Indra, he would worship Indra। सबको बताता था। तो कृष्ण बहुत छोटा था, तो एक दिन पूछा कि बाबा बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? तो नंद महाराज ने कहा हम लोग एवरी ईयर इंद्र का पूजा करते हैं। तो बोला क्यों? क्योंकि वो हमको वर्षा देता है, वर्षा से हमारा ग्रास होता है गोवर्धन में और फिर गाय खा के हमको दूध देते हैं। ये बताया। तो कृष्ण ने बताया कि सभी कुछ तो वो तो समुद्र में पानी बरसाता है, उसका पूजा करने की जरूरी है। उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि गोवर्धन का पूजा करो, है गोवर्धन से सब कुछ आता है। तो लोग तैयार हो गए। कृष्ण बहुत इन्फ्लुएंसर है ना। लोग तैयार हो गए और सभी जो वस्तु था वो गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो इन देखता है कि ये छोटा बालक मैंने पूजा बंद करा दिया है और गोवर्धन का पूजा कराता है। वो सब बात लोगों को पता है। जाओ और गोवर्धन में गौर वर्षा हो, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कस के वर्षा हुआ और बादल गरजा और ऐसे ऐसे सब बिग फ्लड और बड़का बाढ़ कर दिया वहाँ गोवर्धन में। सभी लोग पानी में डूबने लगे। तो सब लोग कृष्ण के पास आए कि आपके कारण ही तो ऐसा हो गया है, ये तो गुस्सा गया और ऐसा कहा। कृष्ण ने कहा कुछ वही नहीं आओ। कृष्ण ने एक उंगली पर कांधे उंगली पर गोवर्धन उठाया और सब भक्त को उसके नीचे कर दिया। सब आगे और इंद्र देखता है तो और कोई बरसात का पानी बिजली छोड़ता है। तो देखता है कि कृष्णा सबको बचा लिया है। तो इंद्र फिर आता है भगवान से माफी मांगने के लिए आता है। तो गौवा के पीछे इंद्र का जो वाहन है गाय है ना, उसके पीछे खड़ा हो गया क्योंकि कृष्णा गाय को लाइक करता है। तो कृष्ण गुस्सा नहीं। तो फिर वहां से आस्ते आस्ते आया और माफी मांगने लगा। तो कृष्णा बहुत उसके ऊपर गुस्साया नहीं। कृष्णा क्यों नहीं गुस्साया इंद्र के ऊपर? क्योंकि इंद्र के कारण सब भक्त को इकट्ठा कर दिया इंद्र ने। कृष्णा likes to be present with his devotees. Prabhupada कहते हैं when we say Krishna, Krishna is never alone. Krishna means with his devotees. Krishna means with his devotees. ऐसा है। तो कृष्णा likes the devotees to be with him. तो इसीलिए हमको ऑलवेज जानना चाहिए कि सब डिवोटीज को हम लोग भगवान के नजदीक लाए। यहाँ से किसी को निकालने की कोशिश ना करें कि हमारे कारण कोई चला जाए। ऐसे इज अ बिग सिन। कृष्णा इज नॉट हैप्पी इफ समबडी comes here and then because of our action or our behavior somebody goes away. तो हमको ये जानना चाहिए कि कृष्णा बहुत खुश होते हैं अगर हम सबको अच्छा से ट्रीट करें और संस्था में रखे। जैसे भक्ति जगह महाराज कहता है कि 4 नियम पालन करे और 5वां है never leave us on। 5वां नियम है कुछ भी हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, never leave us on। बहुत से कूद जाएंगे तो बचना साग वहाँ होता है, आपको खा लेगा। तो साग भी होगी वही है। जैसे पानी में कूदेंगे तो आपको खा जाएगा। इसीलिए बोट में हम रहें तो सही है। तो सब किसी को ये हमको रेस्पॉन्स छोड़ना नहीं चाहिए। हमको खासकर योजना करना चाहिए हम कभी कारण ना बने कि कोई यहाँ से चला जाए। We should be the cause of anybody leaving ISKCON. Leaving ISKCON means leaving Krishna.
कृष्णा बहुत दुखी हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 लोग हमारे पास आते हैं। कौन कौन आते हैं? या तो दुखी रहता है, इंक्विजिटिव रहता है और इकोनॉमिक के वास्ते आता है। तो ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, तो हमारा काम है जैसे लोग आए यहाँ पर हम बहुत अच्छा से प्यार से उनसे बात करें, पूछे आप कृष्ण आए हैं क्या, कहाँ रहते हैं, नंबर ले लो उसके, और सब प्रोग्राम उनको भी इन्वाइट करें, ये जरूरी है। हम कभी तो बहुत प्रोग्राम करते हैं पर किसी का नंबर वगैरह नहीं लेते हैं, दिस इज नॉट द राइट थिंग। वी शुड टेक एवरीबॉडीज नंबर सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट देम, कॉन्टैक्ट देम एंड call them when there is some programs going on, उनके घर के साथ पास भी हो या स्कूल पे हो, कहीं पे हो, उनको बुलाए। आते आते तो वो they become used to, they become dry। कभी कभी लोग बीजा अवस्था में आते हैं, जैसे ड्राई ग्रास आगे बीजा ग्रास आगे नहीं रहेगा, तो ड्राइंग प्रोसेस है कि हम साधु संग कराएं, कथा सुनवाएं, then we become dry and we just catch fire, ऐसा है। तो ये राइट प्रोसेस है, कृष्ण कथा और साथ में सुने तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत लीला भगवान ने किया है, जो बहुत लड़ाई लायक करता है, लाइक फाइट, तो उसके लिए भगवान लीला किया है। जो ये मुस्तिक और चाणक्य लीला था, ये जो कृष्णा और बलराम जाकर उनसे लड़े हैं, तो जैसे वो गए तो जितना माताओं वहाँ थी वो लोग बोलते हैं दिस इज अनफेयर, वी आर हैविंग फाइट हैवी वेट एंड लाइट वेट। वो सोचती थी बच्चे हैं कैसे लड़ेंगे बड़े बड़े लोगों से, दे वर अंडरस्टैंडिंग देम, बट ये लोगों ने घुमा उसको न जाकर बाहर दिया। फिर जब बारी आए कंस को, तभी वो लोग घबराते हैं कंस को कैसे मारे। कृष्णा गया छाती पे चढ़ के कंस को और उसको बहा दिया उसके आसन से। ये कृष्णा का ताकत है, कृष्णा लीला करके सिखाते हैं। जो लोग फाइट लाइक करते तो वो लोग ऐसा लीला लाइक करेंगे, है, और ये भी नहीं लाइक करे तो कृष्णा ने फिर क्या किया, वो बड़ा लड़ाई किया, क्या कहते इसको, महाभारत, महाभारत किया। क्योंकि कृष्णा देखा था, कृष्णा कहते हैं यदा ही प्रश्न ग्लानि भवति भारत, जो धर्म का हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ परित्राय साधूनां विनाशाय दुष्टता, उसको मारने के लिए। तो कृष्णा देखा इतना दुष्ट है, कैसे हम लोग मारेंगे घूम घूम कर। वो ऐसा आयोजन बनाया कि हम लोग महाभारत करेंगे। दुर्योधन का माइंड ऐसे कर दिया कि दुर्योधन बोला नहीं हम तो लड़ेंगे, अपना सब आर्मी लेकर आया है, और इधर से अर्जुन गया। तो जब लड़ाई हुआ तो कितने लोग मारे गए, अलग अलग मारना नहीं पड़ा, कितने लोग 60 मिलियन और समथिंग लाइक दैट ना, 540 मिलियन, 540 मिलियन, इतने लोग मारे गए महाभारत में। कृष्णा को सिर्फ एक, कृष्णा सो इंटेलिजेंट थी, और उसमें अभी सिखाता है कि जिसके साथ में कृष्णा है उसका विजय होगा। गीता में भी कहा है wherever there is Krishna there is opulence, victory and fame। तो उसको opulence मिला पांडवों को, विक्ट्री मिला और फेम मिला, आज तक भी उनका गुणगान होता है। तो हम लोग जानना चाहिए, इसलिए कृष्ण को हरदम रखना चाहिए। कृष्ण नहीं है तो माया आ जाएगी, फिर कृष्ण सूर्य समान माया आया बेकार, जहाँ कृष्णा वहाँ माया नहीं बेकार। तो इसीलिए हमको हर वक्त कृष्णा चयन करना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण के काम करना चाहिए। हर वक्त मन मना भो मत तो मध्यादि नाम हरदम मन में रखो भगवान को। रामायण में भी अच्छा बेसिक है, आई लाइक दिस बेसिक रामायण। रामायण कहते हैं कर से कर्म करो भी निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कुछ भी काम करते हो मन हरदम भगवान में रखो। ऐसे करने से क्या होगा, नेक्स्ट वाले हम कहते हैं मन से सकल वासना भागी, केवल रामचरण डोलागे। सकल वासना मतलब है सब इच्छा हम लोग वहां से निकल जाएगा, केवल रामचरण डोलागे।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो, बट किसको हम कर्म बोलते हैं? व्हाट इज कर्म? एक्टिविटीज। व्हाट इज द रियल कर्म? जो कर्म हम एक्टिविटी करते हैं भगवान को स्मरण करते हुए, उसको कर्म करते हैं। हम लोग कहते हैं कर्म प्रधान, बट कर्म मीन्स you always do your activities, do your duties, whatever you are doing, by remembering Krishna. That is karma. If you are not remembering Krishna, that is not karma. So हर वक्त हमको कृष्णा को याद करें। तो हम देखते हैं कृष्णा जरासंध से भी लड़े थे। जब जरासंध से लड़े 21 टाइम लड़े। क्यों कृष्णा को 21 टाइम लड़ना पड़ा? क्योंकि जब एक टाइम कृष्णा लड़े तो जरासंध एक पार्टी लेके कृष्णा मार दे लोग के, कृष्णा मार दे, पर जरासंध के नहीं मारे, यानी छोड़ देगा दूसरा ने लेकर आई। तो फिर जरासंध और मिटेगा, फिर लड़ाई हो फिर मार दे, फिर जरासंध को छोड़ दे। एक भगवान की लीला है, कहीं छोड़े कि वो जाए पटोर के लाई, कृष्णा जाए नहीं पड़ सकती है, फिर पटोर के लाओ। ऐसे 21 टाइम्स। तो ये लास्ट टाइम खोलती हुए लड़ाई करता रहा तो रुक्मणी के शादी लोग सुपाठ ऐसा करेगा। तो रुक्मणी चिट्ठी भेजी ब्राह्मण से कि कृष्णा आओ हमें बचाओ, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, है? तो कृष्णा को रन छोड़ के भाग गया। जरासंध सोचा आपकी बार मैं इसको हरा दिया, उसका नाम रख दिया रन छोड़ भागा। मगर कृष्णा तो हाया पर्पस के लिए गया था ना, वो हाया पर्पस तो सही नहीं डिवोटी कृष्ण कहते बड़ी तरह साधु नाम विनाश आएगा बचाने लिए गया भक्ति। दिस इज व्हाट कृष्ण डज, ही डजंट टेक हिज he even breaks his vow। कृष्ण अपना भाव तोड़ देता है भक्त को बचाने के लिए। इसीलिए कृष्ण जब कुछ ऐलान करता है तो अर्जुन को कहता है, अर्जुन तू ऐलान करता है कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं। When Arjun says, then Krishna will keep it। कृष्ण अपने बोले सत्ता तोड़ दे। कृष्ण ने भाव लिया था, I'll never take part in this war। मैं जब देखा अर्जुन was about to kill Arjun, तो कृष्ण ने रथ का पहिया निकाल कर उसके ऊपर दौड़ा भीष्म पितामह। A बहुत difficult story to understand कि भीष्म पितामह तो भगवान का भक्त है, ही महाजना टू, why he was fighting against Krishna? Why was Bhishma Pitama fighting against Krishna? He's a Mahajana, and still was fighting against Krishna. क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण को face to face देखें। क्योंकि वो चाहते थे face to face देखें। What reason या? इसलिए वो ऑपोजिट में लड़ते थे धर्म की पार्टी के, want to see Krishna all the time। ज़्यादा थिंग इज डिवोटी अलग अलग रिश्ता है। तो भीष्म पितामह का एक रिश्ता है वो सिविलिटी रिश्ता है कि भगवान से हम लड़ाई करें। ये रिश्ता के लिए वो ऑपोजिट में थे, हैं? और ये जो दृश्य है भगवान उसके पहिया लेकर दौड़े, he remembered that thing about Krishna when he was lying on his deathbed, the arrows. He was remembering Krishna coming to him. और यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, to remember Krishna at the time of death। कृष्ण क्या कहते हैं? अंते काले के मामेवा संग्राम मुक्तवा करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, आप कुछ नहीं याद कर पाए मरने के समय तो एक दिन जरूर याद करें कैसे भगवान पहिया लेके भीष्म पितामह के पास दौड़ता था। तो रेमा के लिए सक्सेसफुल है, अपने वाइफ और हस्बैंड को मत ख्याल करें। रेमा भीष्म पितामह एंड कृष्णा रनिंग विद द व्हील कृष्णा किल भीष्म पितामह। तो ऐसे ऐसे बहुत लीला किए भगवान। कृष्णा बुक में है बहुत सी लीला, बुद्धा को मारे और तिरनावता, वो तिरनावता तो विंडर। कृष्णा छोटा था तो तिरनावता आए कौन से भेजा उसको कि इसको आप मार दें, आया उसको उठा कर ले गया, ऊपर ले गया। तो
कृष्ण तो जानता था इससे क्या प्लान है. कृष्णा became so heavy, कि वो चाहता था उसको गिरा दे. कृष्णा उसको पकड़ा था, गिरा नहीं पाया. कृष्णा उसको दिया मौका और लाकर गिरा नीचे और मर गया. तो ब्रजवासी तो घबरा गए. कैसे वो सोचते हैं कि कृष्णा है सेव्ड बाय सम डेमिगॉड्स. देवी देवता कृष्ण की मदद की है. सम सुपीरियर पावर है सेव कृष्णा टुडे. वो लोग क्योंकि वो माया में थे, लोग माया में, वो लोग कृष्णा संग में था, फिर भी वो समझ नहीं पाते. तो ये कितना डिफिकल्ट होगा हमको समझना. बट प्रोपाल ने ऐसा क्लियर कर दिया है हमको. कैसे हमको समझा दिया प्रोपाल सब, कैसे कृष्ण को समझे हम. तो सेवा करके, तो भक्ति करके हम भगवान को समझ जाएंगे. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है. सभी रहते हुए भी नहीं समझ पाएंगे. कृष्णा ही हमको रिवील कर देगा. कृष्णा भी हमको याद कर सकता है. कृष्णा कहते मैं आपको भुला दे सकता हूँ. कृष्णा विल मेक यू फॉरगेट. आपको हानि चाहो. मैं कभी कभी जब कोई बेस याद करना चाहूँ तो भूल जाता हूँ. रिमेंबर दिस बेस, रिमेंबर दिस बेस ऑफ बॉडी. रिमेंबर दिस बेस, रिमेंबर द बेस ऑफ बॉडी. बस जहाँ घंटी समय विश्व बता समिति ज्ञान. कृष्ण से make you forget. You pray, please make me remember. So you come to the mode of goodness, then it will be easy for you to remember. और हमको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा वैसे सीखने के लिए. हमको जानना चाहिए वैसे जो है प्रेयर है, और वैसे बोलेंगे तो भगवान बहुत खुशी होगी. भगवान हमको ये जो भगवान के बारे में हमको प्रचार करना है. हम बस सीखेंगे नहीं तो कैसे प्रचार करेंगे. इसको हमको प्रचार करना है. सबको प्रचार करना है. भगवान को खुश करना हो तो प्रचार करें. कोई रूप में प्रसाद बांटने, हरिनाम करे, क्लासेस करे, तो कोई भी प्रचार कर सकता है. हमारे हम देखते हैं हमारे जो यंग डिवोटी है क्या चैतन्य कृष्ण है ना, ही डज क्लासेस. तो ही लर्न वेरी फास्ट है. तो भगवान की पाओ, गुरु का कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो तो आप कर सकते हैं. Look at the mercy of the devotees and the Lord. हमको प्रार्थना करना होगा. Please, I want to pass this message. Please help me. गुरु परंपरा है everybody. वैसे ही भगवान बहुत सी लीला किए हैं. और कोई लीला के बारे में बताया जाता है. स्पेशल लीला फेवरेट फॉर यू कृष्ण प्रभु. कोई लीला आप बोलना चाहते हैं? Any लीला I want to speak? ओके, कृष्ण सुदामा फेवरेट है. हाँ, तो सुदामा बहुत गरीब व्यक्ति था, हैं? बट वो भगवान का भक्त था. और वो लोग दोनों कुछ गोकुल में साथ में थे, सुदामा और कृष्णा, हैं? वो बहुत बाद में बहुत गरीब हो गए. पर वो लोग कहते थे क्यों गरीब हुआ? क्योंकि उसकी माता जो गुरु माता थी, वो जब जंगल के लकड़ी बटोरने उनको चना दी थी कि दोनों से करके खा रहे. तो जब पानी बरसा तो सुदामा क्या कहे, आई डोंट नो इट्स राइट स्टोरी हो, आई एम रॉन्ग देन प्लीज कॉल मी. तो सुदामा क्या कहता है, पानी बरसा तो सुदामा चना अकेले खाता है, दांत खड़खड़ाता है. तो कृष्णा बोला आप दांत क्या खाते हो? बड़े ठंडा से मेरा दांत खटखटाता है. और सब चना खा ले, कृष्णा को नहीं दिया. इसी कारण से ऐसा कुछ कारण था. भगवान ने लीला भी था. कृष्णा बहुत गरीब हो गया. जब कृष्णा द्वारका में राजा थे तो एक बार जो उसके पत्नी थी सुशीला, वो सुदामा को बोलते हैं आप अपने दोस्त के पास जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे. उनके एवरी डे इकट्ठे था. हम तो आज भी ऐसे निकल पाएंगे जन्माष्टमी में. वो एवरी डे उनका एक था, बहुत दुबली पतली थी और खाना नहीं था. तो बोलती है कि जाओ, आप आपके मित्र है वो जरूर कुछ देंगे. तो सुदामा बोलते हैं ऐसे खाली हाथ में जाना है, किसी घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ. तो वो कुछ पौवा उसको दिया, किसी से मांग कर दिया तो उसको भेजा. सुदामा जाता है जब
कृष्णा के घर पर, तो गार्ड लोग बोलते हैं कि आप कौन है, अब नहीं जाते, कपड़ा देखते सब महिला वाला कपड़ा है, अब नहीं जाते, कृष्णा तो यहाँ का राजा है। तो ये बताता नहीं, बताओ कोई आया है, वो लोग फिर भी नहीं, तो वो बताया बताओ आपका मित्र सुदामा आया है। तो कृष्णा जैसे सुना कि सुदामा आया है, तो दौड़ कर आया और उसको मिला, गले लगाया। वो उसका वस्त्र वगैरह नहीं देखा कि कौन हालत में है, हैं? ये ड्रामा का स्कूल में बच्चों लोग किए थे, जो स्कूल में हम लोग प्रसाद बांटने गए थे। तो सुदामा ने उसको मिला, फिर सुदामा उसको हाल पूछा, कैसे है, कैसे भाभी है, ऐसे पूछा था। है तो बताया, तो उन्हें बताया प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बताया, सब ठीक है, हैं? तो जिसकी कृपा आप पर हो, बड़ा दुखी कैसे रह सकता है। हाँ, क्योंकि वो कहता है कि आप कृपा से कृपा भगवान का हो तो उसके वो उसको पास सहन शक्ति होता है, वो सहन कर सकता है, ठीक है, टॉलरेट है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं मात्रस्तु स्पर्श को दिया शीतोष्ण सुखदुग्धा अगम आपायन नित्य दम तिथिस्वा भारत। इसे द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस कम लाइक सीजन विंटर एंड समर, जैसे टू टॉलरेट। तो सुदामा का दुख आता है, टॉलरेट करता है, और जो टॉलरेट करने की शक्ति भगवान से आता है। भगवान हमको शक्ति देता है, अपने मन से बल पर नहीं कर पाते। तो फिर उसका कृष्ण भगवान ने चरण पखारा और जो रानियाँ थी उनको फैन किए। तो उन्हें पूछा कि सुशीला तो जरूर कुछ भेजी होगी, तो वो लुकवाने की कोशिश किया, वो छीन कर ले लिया। जैसे खाया है, एक खाया, दो खाया, तो रानियों ने उसको स्टॉप किया कि अब तो अगर सब खाएगा तो हम लोग भिखारी हो जाएंगे, हैं? तो ऐसे करते हुए फिर उनको अपना खाट पे लेटाया, और जब सुदामा जाने लगा तो फिर सुदामा कुछ मांगा नहीं है, उसके जो रियल लेवल कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है आप पे क्या कमी है। घी से भगवान बोलते हैं हार्ट, तो जानता है आप क्या क्या करने आए हैं, सुशीला क्यों भेजी है, ही डिडंट टेल। तो जब सुदामा घर गए तो देखते हैं वहाँ पर सब आलीशान मकान है, सब घर सौदा पानी सब है, और वो चिन्ह नहीं पाता है अपनी स्त्री को। पूछता है पड़ोसी लोग से कि ये कौन है, तो उसको पता लगता है कि कृष्णा का ये कृपा है, सब बरस गया उसके घर पर। तो कृष्णा इज वेरी merciful। तो कृष्णा अपने भक्त का पूजा करते हैं। अभी कलयुग में अगर कोई पूजा कर दे तो सोचे भगवान है, कृष्णा का पूजा कोई कर दे सुदामा का, तो सोचे भगवान है। जैसे हम लोग देखते रामायण में राम शिव जी का पूजा किया तो लोग सोचते हैं राम शिव जी भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान आपको अपने भक्त का बहुत मान रखता है। कभी कभी भगवान अपने भक्त के हाथों से सदन काम कराता है कि उसके महिमा बढ़े। जैसे हम देखते हैं समुद्र मंथन में जो विष निकला था, भगवान खुद पी सकते थे, लॉर्ड कुड टेकन द पॉइजन है। जब मीरा पी ली तो भगवान क्या नहीं पी पाते, मगर भगवान अपने भक्त शिव जी का महिमा बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाया कि लोग जान जाए कि शिव जी के पास भी कितना ताकत है। तो ऐसे भक्त बनने से हमको भी बहुत ताकत मिल जाता है। कहते हैं भगवान के पूर्ण क्वालिटी है 64, कृष्णा के 64 क्वालिटी है। विष्णु तत्व के कितना है 60 है, देव देवता के कितना है 55 है, जीवात्मा के 50 है। 50 आउट ऑफ 64 इज 78%। तो हम लोग भगवान के करीब है, हम लोग का जो क्वालिटीज है बहुत नजदीक है भगवान के, मगर हम लोग ये भूल गए, we have forgotten that we have so much powers, है, we have forgotten। तो भगवान खुद आता है हमको रिमाइंड करने के लिए कि आप लोग ये सब करो, सुख सात्विक जीवन व्यतीत करो, आप लोग के पास भी ये सब गुण आ जाएगा, है। हम लोग भूल गए, हम लोग भी क्लास करते तो जीवन को बड़े लोग कहा कि जैसे जामवंत हनुमान जी के पास शक्ति था कि वो उड़ सकता था,
है लंका। मगर उसको श्राप था, साधु को श्राप दिया था कि वो भूल जाएगा अपना शक्ति, क्योंकि वो साधु लोग को बहुत इंसल्ट किया था, उनके है ना कपड़ा हरण कर लेता, चोर कर लेता था, ऐसे ऐसे उनको यज्ञ बंद वो कर देता। तो उन्होंने श्राप दिया कि जो शक्ति आपके पास है वो आप काम के समय भूल जाओ। तो जामवंत जानता था, जामवंत ने उसको रिमाइंड किया कि आपके पास शक्ति है बोलने के लिए। तो इसी तरह भक्त आते हैं, साधु लोग आते हैं, भगवान आते हैं हमको रिमाइंड करने के लिए, इसको धर्म स्थापन करते हैं। कृष्ण भगवान आए और हमको बताए कि कैसे हम लोग भक्ति करें और भगवान के पास। गृहराशन भागवत महापुराण की, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, और